Now you see, in the first video we have seen the analogus between the electric field and the magnetic field, and we have started with the derivation for a bar magnet as an equivalent solenoid. We have to show that bar magnet is equivalent to a solenoid. So for that we are considering a solenoid and we are deriving the relation for solenoid, and this relation is when we are considering this relation we have to consider a solenoid. So figure we have considered the solenoid, n number of turns of coils are there in this particular solenoid, and the total length is 2L. So center of the solenoid is taken as O. From the center to here distance is L. From here to here distance is L. P be the point where we have to calculate the field. Okay, and the radius of this is A, and dx is the small element we have considered of thickness dx, and which is at a distance x from the center of the solenoid. तो ये हमने देख लिया था फर्स्ट वीडियो में. अभी हमको डिराइव करना है. सो अब डिराइव करने से पहले वी हैव टू जस्ट सी दैट टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने रहेंगे. n number of total number of coils are there, but we have considered the small element dx. So for the number of turns in the circular element में number of turns कितने आएंगे. Number of turns in circular element, it will be equal to n into dx. dx क्या है, लेंथ है. Since n is the dx is the length, so number of turns will become n into dx. Now already we have derived the relation for what, magnetic field P due to a circular current element. Okay, so magnetic field हमने already derive किया था. So that derivation is equal to what, dB is equal to mu naught by 4 pi into 2 pi n I r square divided by x square plus r square to the power of 3 by 2. This we have derived where, in moving charges and magnetism. Okay, magnetic field due to a point P on the axis of a circular coil. So on the basis of this the formula we have to take as it is in this particular derivation. Here this is also a circular ring, and from this circular ring we have to, P is the point at which we have to calculate the magnetic field. So but in here n indicates what, number of turns, but in this particular case we are considering for the small current element. What is the small current element, dx. dx क्या है, small current element है. तो स्मॉल करंट एलिमेंट dx है, तो dx के ऊपर टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या हो जाएंगे, यू विल राइट म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, इन प्लेस ऑफ दिस, इन प्लेस ऑफ n वी विल बी टेकिंग n इंटू dx. समझ में आ रहा है ना, n इंटू dx क्यों ले रहे हैं हम इधर, बिकॉज n इंटू dx मीन्स इट इज़ द स्मॉल करंट सर्कुलर एलिमेंट. स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट हमने किस पे कंसिडर किया हुआ है, सोलोनॉइड पे कंसिडर किया. उसमें dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय x. फर्दर r क्या है, रेडियस है. किसका रेडियस है, सर्कुलर कॉइल का. मगर यहाँ पर सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है, a है. तो व्हाट विल हैपन हियर, i एज इट इज़ रहेगा, r की जगह में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, a स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आ गया. अब सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर. नाउ हियर एक्स स्क्वायर, ये जो r डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है कितना है, कितने दूर है, x डिस्टेंस है. कहाँ से, सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड से. सो मुझे क्या करना है, ये जो सर्कुलर रिंग है इसका डिस्टेंस निकालना है. मगर ये r डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर से है. r डिस्टेंस के P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है. मगर x डिस्टेंस, ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उसका डिस्टेंस कितना है, x. मुझे क्या करना है, ये जो सर्कुलर करंट है एलिमेंट है यहाँ से लेके तो इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे निकालना है. तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इधर r है और ये डिस्टेंस कितना है, x है. तो इन प्लेस ऑफ x व्हाट आई हैव टू राइट हियर, r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस r की जगह में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर.
टू द पावर ऑफ 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक बार समझ लो, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। इसके लिए मैंने क्या किया था, स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया था dx ऑन ए सर्कुलर कॉइल, और सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर एलिमेंट कितना हो जाएगा, n इंटू dx। और जो सर्कुलर कॉइल है इसका रेडियस इज a, मगर फॉर्मूला में हमने उस वक्त क्या लिया था, r लिया था, तो इधर r की जगह में मुझे इधर क्या पुट करना पड़ेगा, a पुट करना पड़ेगा। ओके, और n की जगह में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, n इंटू dx। और थर्ड पार्ट है x जो डिस्टेंस उधर हमने क्या लिया था, सेंटर ऑफ द कॉइल टू द पॉइंट P लिया था, मगर यहाँ पर x कौन सा लिया हुआ है, x जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का है, करंट एलिमेंट से लेके तो सेंटर ऑफ द सोलोनाइड से, मगर P का डिस्टेंस कितना है, यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है, r है, तो ये डिस्टेंस मुझे उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, r माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 ले लिया। समझ में आ गया। दिखने में बड़ा है मगर अंडरस्टैंडिंग करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिगर अंडरस्टैंड कर लेना है। फिगर, वंस यू अंडरस्टैंड द फिगर, ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर easily. Now you see this is for the small magnetic field due to the small current element. Now what I have to do, I have to calculate the magnetic field, whole magnetic field I have to calculate. So to calculate the whole magnetic field, what I have to do, I have to integrate this. मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए now we have to integrate this, and for the case of integration what we will do is लिमिट डालना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन लिमिट डालते समय में हमको क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डालना पड़ता है। अभी देखो, जस्ट सी दिस डायग्राम प्रॉपरली, फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज l, फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज l। ओके, मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड P, व्हाट मस्ट बी द लेंथ, लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, L के ऊपर है। तो लिमिट जो L है ये कौन से साइड में है, ये ओरिजिन अगर मैं O को कंसिडर कर रहा हूँ तो L कौन से साइड में आ जाएगा, नेगेटिव साइड में आएगा, और ये L कौन से साइड में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। सो हियर द लिमिट विल बिकम, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B, व्हाट विल बी द टोटल, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ L टू प्लस L म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई n dx i a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, इफ़ यू ओपन दिस ब्रैकेट, r स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और जस्ट विल पुट हियर r माइनस एक्स, फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप विल पुट r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a square to the power of 3/2. Okay, now one thing you have to understand from the figure, this is, we have to understand that r is very very greater than a. Just see the diagram. डायग्राम में मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, r जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, किससे, इस सर्कुलर रिंग से। ओके, और सिमिलरली r जो है वो बड़ा है किससे, x से, वेरी वेरी ग्रेटर देन x। दीज टू कंसिडरेशंस वी हैव टू डू। क्या कंसिडर करना है, r डिस्टेंस है रेडियस ऑफ द कॉइल से बहुत बड़ा है, r जो है डिस्टेंस x से बड़ा है। ये फिगर में देख लो, ये जो डिस्टेंस है x वो काफ़ी छोटा है, किससे, r से। सिमिलरली a जो है वो भी बहुत छोटा है, किससे, r से। तो वन थिंग यू विल ऑब्जर्व दैट r इज ग्रेटर हियर। इफ r इज ग्रेटर, x एंड a आर स्मॉलर, सो व्हाट विल डू, वी विल नेग्लेक्ट द टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, x और a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इधर कितना बचेगा, इफ आई विल नेग्लेक्ट द x एंड a, सो दिस विल बिकम डिनोमिनेटर में r स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, तो 2 विल गेट कैंसल, तो क्या बचेगा इधर, सिर्फ r³ बचेगा। सो विल गेट इन द इक्वेशन p इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू
2 pi n dx I into a square divided by r cube. ओके, डिवाइडेड बाय आर क्यूब. सो ये फॉर्म हो गया है. अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है. वी हैव जस्ट केप्ट द वैल्यूज ऑफ r is greater than a and r is greater than x. So this equation, when we now we have to integrate. So before integration, what we will see, dx part is only the part which is function of x. Remaining all are constant. बाकी के सब क्या है, कांस्टेंट ट्रीट होंगे. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओके. So in this particular case, what we will do is b is equal to mu naught by 4 pi 2n I a square by r cube integration of dx minus L to plus L. Okay, integration of dx is what, x. तो लिमिट इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस एल टू प्लस एल. ओके, सो हियर लिमिट पुट करते समय में दीज टर्म्स आर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2n I a स्क्वायर बाय 4 r क्यूब इंटू हियर x अपर लिमिट इज l, लोअर लिमिट इज माइनस ऑफ l. तो अपर लिमिट पॉजिटिव रहेगा, लोअर लिमिट नेगेटिव रहेगा. नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये एल प्लस एल विल बिकम व्हाट, 2l. तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू 2l. इज इट क्लियर? तो यहाँ तक अपना डेरिवेशन हो गया है. सो और एक बार देख लो इसको कैसे समझना है अपने को. सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव सीन दैट म्यू नॉट बाय 4 पाई 2n I a स्क्वायर बाय आर क्यूब इंटू 2l. ओके, अब इफ सपोज वी रीअरेंज द टर्म्स, हाउ, small rearrangement we have to do. Mu naught by 4 pi into 2 pi a square ले लेंगे. Okay, why we are doing, just I will tell you. n 2l into r and divided by r cube. Now we will give this as what, equation number 1. Is it clear what we have done? After this step we have not done anything, we have just rearranged the term. 2 we have written as in pi, this is 2 pi. Why we have taken this pi, a square, समझ में आ रहा है? पाई a स्क्वायर क्या है, ये एरिया of the cross sectional area of the circular ring. n into 2l. n into 2l means what? n means the number of turns, 2l is the total length, the total number of turns of the coil. So if we consider what is a magnetic dipole, m is given by what, total number of turns multiplied by current into cross section. So m can be written as what, n 2l. total number of turns क्या आ जाएगा, n into 2l. current कितना है, I, and area of cross section is what, pi a square. So this term will be replaced by what, m. तो क्या हो गया ये, b is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब. तो ये हुआ कंप्लीट हमारा डेरिवेशन. किसके लिए, और ये डेरिवेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इक्वेशन इज द सेम फील्ड फॉर द बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन. सो बार मैग्नेट इज व्हाट, इट इज एन
इक्वलेंट टू सोलेनोइड। तो ये कंप्लीट हुआ डेरिवेशन, आज ही ये कंप्लीट करेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना।